नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। फ्रेंड्स, 5 डे बैंकिंग के बारे में ये तो निश्चित हो गया है कि इलेक्शन के पहले 5 डे बैंकिंग का डिक्लेरेशन संभव नहीं है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कोई पॉलिसी नीति पे, किसी नीति सब्जेक्ट पे गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। आपको याद होगा, अभी पटना में 17 मार्च को एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स युवा बसंत उत्सव मनाया गया और उसमें आईबॉक के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि 5 डे बैंकिंग जरूर होगा और अवश्य होगा, जल्दी होगा। लेकिन जब तक कोड ऑफ कंडक्ट यानी इलेक्शन 4 जून को डिक्लेयर होगा, नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो इमीडिएटली कोई 5 डे बैंकिंग डिक्लेरेशन करने के लिए तैयार नहीं होगा, उसमें टाइम लग सकता है। आपको याद होगा कि मैंने एक आरटीआई लगाया था 27 जनवरी को और उसका जवाब मुझे 23 फरवरी को मिला था और मैंने अपने सभी फ्रेंड्स से कहा था कि क्या मैं अपील में जाऊं, तो लोगों ने कहा अपील में जाइए। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि उसके पहले जब मार्च में बाइपार्टाइट सेटलमेंट होगा तो इसका डिसीजन हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी 5 डे बैंकिंग के बारे में डायलेमा की स्थिति बनी हुई है। जबकि यह सच है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 5 डे बैंकिंग का प्रपोजल रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजा है और जो मैंने फर्स्ट अपील किया था 24 फरवरी का, उसका रिप्लाई डीएफएस ने मुझे कल यानी कि 21 मार्च को दिया है। द अपील रजिस्ट्रेशन नंबर प्रेफर्ड बाय द अपीलेंट श्री Devendra Kumar Srivastava under the provisions of the RTI Act 2005 has been examined. It is observed that Sri Srivastava filed online RTI application dated 27 January 24 had sought information related to implementation of 5 day banking. Is there any proposal pending in DFS for approval of 5 days weeks in banking industry? If yes, when it will be implemented? What is expected date? Please specify. The Central Public Information CPIO of IR section had considered the request of the applicant in the light of the provisions of the RTI Act and sent reply on 21st February 24. However, dissatisfied with the reply furnished by CPIO, the applicant has preferred the present appeal. After going through the request of information dated 27 January 24, reply of CPIO, wide letter dated 21st February 24, and the contents of the appeal preferred in the matter, it is observed that the appeal dated 24th February preferred by the appellant is on the ground that CPIO has provided incomplete, misleading, or false information. In this connection, it is found that CPIO letter dated 21st February had appropriately replied to the said RTI application. In this regard, it is pertinent to mention that under the RTI Act, only such information can be supplied which already exists in the record. It is settled law that CPIO is not required to create, collate, or collect information in the response to an RTI application. Further, it is also settled law that queries seeking explanation and the clarification does not fall within the definition of information under Section 2F of the RTI Act. That there is no obligation under RTI Act to address the same. Further, for seeking fresh information relating to the points raised in the appeal, appellant is required to make separate applications to the concerned authorities under the provisions of Right to Information Act 2005. As such, reply of CPIO in this regard is in the order and does not call for any interference by the appellate authority. In view of the above, appeal dated 24th February stands considered and accordingly disposed of. जब मैंने पहला
अपील जब आरटीआई लगाया था 27 जनवरी को, तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से था कि इज देयर इन प्रपोजल पेंडिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ डीएफएस, और उसके रिप्लाई में ये आया था द प्रपोजल फॉर इंडियन बैंक एसोसिएशन सबमिट a proposal for the declaration to declare the all Saturday as holidays in the banking industry has been received by IR section। यानी कि प्रपोजल उनके पास है, उसके अलावा वो कोई रिप्लाई देने को तैयार नहीं थे। हालांकि मैंने अपील में ये पूछा था व्हाट इज इट्स कंटेंट्स, जो एप्लीकेशन, जो प्रपोजल आईबीए ने रिकमेंड करके मिनिस्ट्री को भेजा है, उसके कंटेंट्स क्या हैं। लेकिन अपील में उन्होंने कहा कि अगर आप उसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं कि दोबारा आप आरटीआई फाइल करेंगे, और जो आपको रिप्लाई दिया गया वो ठीक है, इसके अलावा और कोई इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि पता है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बाईपार्टाइट सेटलमेंट हो गया और वीकली ऑफ करके उसमें एक क्लॉज ऐड किया गया, यानी कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही स्टाफ की टाइमिंग्स पड़ेंगे और एप्लीकेबल होगा 5 डे बैंकिंग। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता है, नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है और फिर से नई गवर्नमेंट उस पर कोई डिसीजन लेगा, तभी 5 डे बैंकिंग का रास्ता खुलेगा। सो इस समय किसी भी प्रकार का आरटीआई अथवा कोई क्वेरी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई रिप्लाई आपके पास प्रॉपर ढंग से नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।